Hello students, I am Deepika Pathak, Assistant Professor from Noida Institute of Engineering and Technology. Today we are here for this session and we will discuss the hospital formulary. So now start with the definition part. What do you mean by the hospital formulary? As it is required in the hospital for every medication which is used in the hospital. So see, hospital formulary, as you can see, one of the picture here is the NFI, National Formulary of India. Yeah, this is the National Formulary. So every medications which is prescribed or which is to be prescribed by the physician, it is in this book. Yeah, National Formulary of India. Similarly, for different hospital, for the private hospital or the government hospital, everyone make their own formulary, which you call it as a hospital formulary. So see in the definition part. It is a continuously revised compilation. Of course, revision is always the important part. Yeah. So, continuously revised compilation of pharmaceutical dosage agents and their forms. So, this is, you can call it a booklet. This is a booklet where every medications which need to be prescribed by the physician. Yeah. So, it is written in the book. And it needs to be revised every year or 6 months, you can say. So it is continuously, that's why it is continuously revised compilation of pharmaceutical dosage agents and their forms. जितनी भी तरीके की forms use की जाएंगी, जैसे मान लो form से क्या मतलब है, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक दवा है जिसकी आपको टैबलेट भी मिल जाती हैं, सिरप्स फॉर्मुलेशन भी आते हैं, पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए देयर सम ऑफ द सिरप अवेलेबल. सिरप्स में भी आपकी कौन सी और स्ट्रेंथ में मिल जाएंगी. वी हैव टू मेंशन दिस इन द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, लाइक फॉर द 10 ml, लाइक फॉर द 20 ml, लाइक फॉर द 30 ml. सो एवरीथिंग वी हैव टू नोट इट. It reflects the current clinical judgment of the medical staff. I told you, इससे एक चीज़ ये होती है कि हम प्लान कर पाते हैं कि कौन सी दवाओं को हॉस्पिटल में यूज़ किया जाना चाहिए. एंड देयर वेरियड फैक्टर्स, कई फैक्टर्स होते हैं जो दे आर डिपेंडेंट, जिनको कि ध्यान में रखा जाता है जब भी हॉस्पिटल के अंदर आप हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बना रहे हैं. देयर कुड बी इकोनॉमिक रीजंस, फिनेंशियल रीजंस देखे जाते हैं. देयर कुड बी द डिसीजेस, देयर कुड बी द डेमोग्राफी. डेमोग्राफी कैसी है आपके आसपास एरिया की, उसी के अकॉर्डिंगली आप दवाओं को मंगवाएंगे. कौन से डिसीजेज मोर प्रोमिनेंट हैं उस एरिया में, उसके हिसाब से हम दवाओं को मंगवाएंगे. ठीक है, कई बार हमें उसको रिवीजन करने में एडिशन भी करते हैं, डिलीशन भी करते हैं. कई दवाओं को ऐड किया जाता है ईयर बेसिस पे, कई दवाओं को डिलीट किया जाता है. सो देयर आर मेनी रीजंस, विल डू लेटर. सो दीज आर सम ऑफ द these are some of the points you can see for the hospital formulary. One is the continuously revised compilation, another is it reflects the current clinical judgment. इससे पता लग जाता है फिजिशियन को कि उसको क्या जजमेंट करना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन. ठीक है. अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं. सी, आपको थेरेपी के बारे में पता लग जाता है, मतलब फिजिशियन हु इज प्रिस्क्राइबिंग ऑफ कोर्स. ठीक है, आपको थेरेपी के बारे में पता लग जाएगा. इकोनॉमिक, बिकॉज यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच रियली बेनिफिट्स to the society, which really benefits to the hospital, then only we will select it for a particular formulary. Of course, for the ours formulary, own hospital formulary, so वो economic basis पे decide किया जाता है. Therapeutic basis पे decide किया जाता है किस तरीके के patients आ रहे हैं. There are some of the hospitals which are very specialized for the cardiac section, which is very specialized for you can say the gastric section, which is specialized for the cancer section. So we have to see this. Educational, of course, hospital formulary बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम रेंडमली बना रहे हैं. वी हैव टू सी व्हाट वी हैव टू सी देयर. या हमें थेरेपेटिक कमेटी बनानी होती है. ठीक है, ये थेरेपेटिक कमेटी क्या करती है, एविडेंस बेस्ड स्टडी करती है. अब एविडेंस बेस्ड स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉट ऑफ लिटरेचर्स वी हैव टू स्टडी, है ना. बहुत सारे लिटरेचर्स देखने पड़ते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं, कौन सी इफिकेशियस ड्रग है, क्या रिजल्ट्स दे रही हैं, फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़ की रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं. मार्केट के अंदर जो दवाएं ऑलरेडी लॉन्च की गई हैं,
जो दवाएं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, उन स्टडीज़ उनमें जो हम स्टडीज़ कर रहे हैं, विच कॉल इट एज अ फार्माकोविजिलेंस और फेज 4 स्टडीज़, वहाँ से सारा डाटा लेकर काफ़ी यू कैन से सिस्टमिक स्टडी होती है, सिस्टमिक मैनर में स्टडी परफॉर्म की जाती है, इसीलिए आप उसको एजुकेशनल भी बोल रहे हैं। सो वो एजुकेशन की तरह भी काम करता है। रैशनल ड्रग यूज़, why it's called as a rational drug use? What do you mean by the rational first? रैशनल ड्रग यूज़ का मतलब है राइट पेशेंट को देना, राइट डोज में देना, राइट थेरेपी, राइट ट्रीटमेंट के लिए देना, राइट टाइम पे, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना. सो दीज ऑल आर राइट्स हेयर फॉर द रैशनल ड्रग यूज़. सो अगर कोई आपकी, लेट्स से एन एग्जाम्पल, कोई आपकी ऑलरेडी ड्रग मार्केट के अंदर है, लेट इट बी द ड्रग ए, और आफ्टर द 1-2 years there's another drug in the market with a more efficacy and the low cost. Of course we will substitute it with a newer drug. Okay, so we call it as a rational drug use. So हमें rational drug use करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि which is the best alternative available at this time. उसके लिए आपको compilation करना, of course अपनी drugs की, and compilation revision करना बहुत ज़रूरी है. So these are the 4 points we will see in the advantage part. Now see the disadvantages क्या होती हैं. Disadvantages इसमें ये है आपकी, पहला कि physician फॉर्मुलरी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं what they have to prescribe, and of course before preparing the formulation they are the part of the committee, they also are agreed on it, but they can't change it later. So that's why written as a disadvantages, because it deprive the physician of his right and privilege to prescribe. They will prescribe only on the basis of what the medications are in their hospital formulary. The point number 2, फार्मासिस्ट सिर्फ वही दवाएं मंगाएंगे जो कि आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में मेंशन है, बिकॉज दूसरी दवाएं मंगाने का फ़ायदा नहीं है. व्हाई? बिकॉज जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपकी प्रिस्क्राइब की जाएगी ऑल बाय द फिजिशियन, एंड फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. क्या? सो परमिट्स द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज द सोल जज ऑफ होम ब्रांड्स ऑफ द ड्रग्स आर टू बी परचेज. कौन सी ब्रांड्स खरीदनी है, परचेज करनी है, और कौन सी डिस्पेंस करनी है. नाउ systems where the hospital formulary system, this is a topic, hospital formulary system. hospital formulary system क्या होता है? देखिए, सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ क्या होगा, कमेटी होगी. किसकी कमेटी? सी, मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल. मेडिकल स्टाफ मतलब फिजिशियन. अच्छा, अब क्या होता है, बिकॉज हम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर हर तरीके की दवाएं मेंशन करते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके के डिसीज़ को लेती हो. सो इसलिए हम फिजिशियन फ्रॉम द डिफरेंट और स्पेशलिटी से रिकमेंडेशंस लेंगे. मतलब आपका कार्डियोलॉजी के डॉक्टर होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. सो दीज ऑल द स्पेशलिटी, द स्पेशल डॉक्टर्स विल कम, सर्जिकल डॉक्टर्स. So they will give the recommendations that which drug actually needs to be introduced in the hospital formulary. So medical staff of the hospital with the help of pharmacy की मदद से, और therapeutic committee की मदद से. therapeutic committee में कौन होता है? इसमें भी आपके physicians होंगे, इसमें आपके pharmacist होंगे, nurses होंगे. Selects and evaluates medicinal agents. What they will do? They will select. I told you, selection. अब ये आपका क्या है? Selection बहुत बड़ा प्रोसीजर है. How will select it? See, दवाओं की सिलेक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि उस एरिया में कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, कौन से डिसीज मोर प्रोमिनेंट है, वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है, ओल्ड ज़्यादा है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, वी कैन सब्सटीट्यूट इट विद, या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कैसी है, या आपकी अडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो उसी के बेसिस पे हम फॉर्मुलेशंस भी प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मुलेशंस भी डिसाइड करते हैं विच फॉर्मुलेशन नीड टू बी मोर फॉर आवर हॉस्पिटल. नाउ सो सिलेक्शन नीड्स टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, इसमें काफ़ी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जब भी आप दवाओं को सिलेक्ट कर रहे हैं. दूसरा, एवैल्यूएशन. अच्छा, अब हमें एवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है. दवाएँ किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रही हैं, स्पेशली फॉर द डिसीज़ विच आर इन अ वेरी क्रॉनिक फेजेस. कई डिसीज़ जो क्रॉनिक फेजेस हैं उनके लिए आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है. क्या दवाएं कम एडवर्स इफेक्ट्स दे रही हैं,
कम साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं कंपैरेटिवली विद द अदर ऑल्टरनेटिव्स. सो वी हैव टू ऑफ कोर्स एवैल्यूएशन में कॉस्ट भी हम देखते हैं, कोई भी दवा का कॉस्ट कैसा बढ़ रहा है. ठीक है, सो कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज करके रखते हैं एंड इफेक्टिवनेस वी हैव टू मैक्सिमाइज. मेडिसिनल एजेंट्स के लिए क्या एवैल्यूएशन करेंगे, उनके डोसेज फॉर्म्स को डिसाइड करेंगे, विच आर टू बी कंसिडर्ड टू बी मोस्ट यूजफुल इन द पेशेंट. आई टोल्ड यू फॉर्मुलेशन डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ द पेशेंट नियर टू योर हॉस्पिटल. या now members involved in the preparation of the hospital formulary system. I told you hospital formulary system है आपका, एक कमेटी है जिसमें मेडिकल स्टाफ है, जिसमें फार्मेसी है, फार्मेसी के लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपके थेरेपेटिक कमेटी के लोग हैं, एंड they all will constitute the hospital formulary system and then will make the hospital formulary. So कौन कौन से members हैं इनको पढ़ते हैं hospital formulary system में. Clinicians, I told you in the previous slides, clinicians from each major specialty. Now you get it? Why major specialty? Because हमें हर तरीके की दवाओं को include करना है and this is very important to take them क्योंकि उनको अपने departments के they know better. So major specialty including surgery, including internal medicine. Yeah. Next, clinical pharmacologist को हम लेंगे because they know what drug is giving the adverse effect to which section. ठीक है, so clinical pharmacologist को लेंगे हम, microbiologist को लेंगे, they know about the microbes, about the microbial therapy, antimicrobial therapy. Yeah, nurses will take the nurses, chief and deputy chief pharmacist, hospital administrator. So these all 5 will make hospital formulary system. Yeah. Next, types of the hospital formulary. See, हमारी hospital formulary भी जो भी individual hospital के basis पे बन रही है वो भी 3 तरीके से हो सकती है. What are the three types you can say? One is the open formulary, another is the closed formulary, and the next is the incentive based formulary. Okay, what do you mean by the open formulary? Open formulary का मतलब होता है which is not restricted. ठीक है, जो आपकी restricted नहीं है बिल्कुल भी, सारी दवाओं को उसमें मेंशन किया गया है, उसे आप बोलते हैं open formulary. Every medicines is noted in that particular formulary, you will call it as a open formulary. Now what do you mean by the closed? Similarly closed formulary होती है आपकी, closed formulary को आप दूसरे नाम से बोल सकते हैं, there is a second name for it. What is it? The restricted. उसको हम क्या बोल सकते हैं? Restricted formulary. ठीक है, closed formulary को हम restricted formulary बोलते हैं, मतलब एक specific area के लिए आपने formulary बना दी, कुछ एक specific drugs के लिए हमने formulary बना दी, उसको आप बोल रहे हो restricted formulary. Like for particular section you can say like anti-diabetic, है ना, anti-diabetic में हमें कौन से यूज़ किए करने चाहिए, या anti-diabetic therapy के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, या फिर there could be another anti-cancer, या for very special care plans, very special care plans. So closed formulary is very specific you can say. ठीक है, बहुत स्पेसिफिक होती है, जैसे कुछ स्पेशल केयर प्लान्स मेंशन करते हैं हम, उसमें कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए दवा मेंशन कर रहे हैं, उसे आप क्या बोल रहे हो? रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मुलरी. एंड द पॉइंट नंबर 3, incentive based formulary. What do you mean by the incentive based formulary? These are the formularies for which the patient have to pay high, because if the patient really wants to be dispensed their drug from a non-formulary drug, you can say these are called as a non-formulary drugs. ठीक है, जब हमें कोई आपकी ऐसी दवाएं प्रिस्क्राइब करनी है जो कि आपकी फॉर्मुलरी में मेंशन नहीं है, उसके लिए पेशेंट्स को हाई चार्ज पे करना होता है और उसे आप क्या बोलते हैं? इंसेंटिव बेस्ड फॉर्मुलरी. दैट्स व्हाई कॉल्ड इज रिटन एज इंसेंटिव. वी हैव टू पे, या वी हैव टू पे फॉर द नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स. So you call it as an incentive based formulary.
फॉर द नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स. नाउ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, देखिए फॉर्मुलरी कई तरीके की हैं, जैसे WHO फॉर्मुलरी, ये आपकी WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिकमेंडेड फॉर्मुलरी है. ठीक है. दूसरी आपकी क्या हो सकती है, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी हो सकती है. सिमिलरली एक नेशनल फॉर्मुलरी होती है. ठीक है. दिस इज रिवाइज्ड एवरी ईयर. Some of the formularies used as standard references in many hospitals. There are many hospitals which are using the national or the WHO formularies, but also there are many hospitals who are making their own formularies. ठीक है. अपनी formularies भी बनाई जाती हैं और national formularies को भी as a reference use किया जाता है. Now contents of the hospital formulary. See, आपकी जो hospital formulary होती है, you call it as a booklet. ठीक है. As a physician are using it, clinical pharmacologist are using it, pharmacist are using it. So उनके लिए कुछ specific requirement है कि बुकलेट को कैसा होना चाहिए, उस नेशनल फॉर्मुलरी को या हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को कैसा होना चाहिए. द सम ऑफ दी यू कैन से फीचर्स. क्या फीचर्स होंगे, विल सी. पहला, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, टाइटल पेज होता है. ठीक है. जिस पे मेंशन होगा आपका दिस इज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एडिशन, ईयर क्या है आपका, दिस इज ऑल रिटन ऑन द टाइटल पेज. या रिवीजन हुई है फॉर्मुलरी की, दिस इज रिटन इन द टाइटल पेज. पॉइंट नंबर 2, नेम्स एंड टाइटल ऑफ द मेंबर्स. अच्छा, दूसरा क्या है आपका, फॉर्मुलरी में हमें एक डाटा और मिलता है जब भी हम फॉर्मुलरी देखें. सो फॉर्मुलरी में हमारा PTC मेंबर्स का डाटा होता है. PTC मेंबर्स मतलब फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी. अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, वो क्या है, वो आपका PTC ही है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी. यही रिकमेंड करती है, ये कमेटी रिकमेंड करती है. इसमें फार्मासिस्ट भी आ गए, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी में हमारे फिजिशियंस आ गए फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशलिटी, फ्रॉम नर्सेज आ गई. ये सारे मिलकर क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं. सो कौन कौन लोग आपके PTC में हैं, एंड दे आर गिविंग द सजेशंस फॉर द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, वी हैव टू राइट उनके नाम और उनके क्या डेजिग्नेशंस हैं. टाइटल मीन्स क्या डेजिग्नेशंस हैं. either could be the clinical pharmacologist of the hospital, either could be the physician or the surgeon. ठीक है. So we have to write the titles and names. Table of contents. Table of contents का मतलब है आप कौन कौन सी दवाओं के सेक्शंस ले रहे हैं. ठीक है. कौन कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरीज है for which you are putting the medicines for the as a therapy, of course. So in the table of contents we'll write the medications with their dosage forms. Now information on hospital policies and procedures concerning drugs. अच्छा, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में और भी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा टाइटल है, टाइटल पेज होता है. दूसरा हमने पढ़ा कि आपके PTC के कौन कौन से मेंबर्स हैं. सिमिलरली इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल किस तरीके की पॉलिसीज़ को यूज़ करता है और क्या प्रोसीजर्स है फॉर अ कंसर्निंग ड्रग्स, वो भी हम मेंशन करते हैं. ठीक है. क्या, जैसे देखो उसमें आपका आ जाएगा PTC ऑफ हॉस्पिटल. ठीक है. मतलब फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, कौन कौन लोग हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड ऑपरेशंस. व्हाट डू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव्स. सी, जब भी हम कोई भी डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, दे आर द ऑब्जेक्टिव्स, एंड फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर मेडिसिन और पर्टिकुलर ड्रग, दे आर द रीजंस. कई रीजंस होते हैं, जैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, वी कैन अचीव कि आपके री हॉस्पिटलाइजेशन ना हो. ठीक है. लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स यू कैन से. जैसे आपका हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आप इफ़ यू आर ट्रीटिंग इट, व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट द हाई BP. दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव. सो ये ऑब्जेक्टिव्स हम, और ऑफ कोर्स टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स, टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स, टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, है ना, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाए.
So this is all, these all are the objectives we want to achieve for a particular disease which is recommended by the PTC for selecting a particular drug in a hospital formulary. Now what are the operations to what are the operations for achieving the objective of the hospital formulary system? So वो operations आप कैसे उनको operate करेंगे, ठीक है, क्या dispensing system इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से dispense किया जाएगा, ठीक है, monitoring plan क्या है, that is everything is written for the formulary system. Point number 3, hospital regulations and procedures for prescribing dispensing drugs. See, I told you, जैसे कि हम objective mention कर रहे हैं, similarly हॉस्पिटल्स के रेगुलेशंस, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं दवा को प्रिस्क्राइब करने के लिए और डिस्पेंस करने के लिए. अब डिस्पेंस करने के लिए देयर आर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स आल्सो इन्वॉल्व है, ठीक है. सो यहाँ पे डिस्पेंसिंग सिस्टम में फार्मासिस्ट का रोल भी आ जाएगा. क्या आप डाइल्यूशंस कर रहे हैं मेडिसिन की, क्या एडमिक्चर्स फॉर्मुलेशन हो रही हैं, ये सारा आपका डिस्पेंसिंग ड्रग में आ जाएगा, क्या प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस हैं. दूसरा एक यहाँ क्या था, प्रिस्क्राइबिंग. प्रिस्क्राइबिंग के लिए मतलब what physician will use, what are the procedures physician will use, okay, for prescribing a particular drug. Similarly for dispensing drugs the pharmacist are the key role. Point number next, hospital pharmacy services and procedure. जैसा कि हमने पढ़ा अभी क्या हॉस्पिटल के बारे में कि हॉस्पिटल क्या करेगा, क्या पॉलिसीज, क्या रेगुलेशन यूज करेगा, ठीक है. सिमिलरली हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज क्या होंगी, मतलब एक फार्मासिस्ट क्या सर्विसेज देंगे, ठीक है, जैसे पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. These are some of the procedures for treating a particular disease. Now products accepted for use at hospitals. See, I told you hospital formulary जब बनाई जाती है, जब हम उसको बना रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं which drugs we have to put, which medicines we have to put, we have to note some points. What are these points here? The product accepted for use at a hospital. How you will accept. See, items added and deleted from the previous editions. अच्छा, जब आप रिवीजन कर रहे हैं दवाओं की तो हमें क्या देखना है कि कौन सी दवाएं ऐसी हैं which needs to be add, which needs to be delete, and there the reason behind this. हम क्या reason देखते हैं इसमें? See, reason ये है आपका maybe drug is more efficacious, ठीक है, कोई दवा आपकी ऐसी आ गई है जो बहुत ज़्यादा efficacious है with lesser side effects, ठीक है, साइड इफेक्ट्स कम हैं, कॉस्ट कम पड़ रही है फॉर द सोसाइटी, फॉर द हॉस्पिटल इटसेल्फ. सो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू टेक व्हाइल एडिंग. सिमिलरली फॉर द डिलीशन, या डिलीशन व्हाट कुड बी, ऑफ कोर्स जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जिन दवाओं के साथ, इफ विल गेट द बेटर ऑल्टरनेटिव, बेटर सब्सटीट्यूट, ऑफ कोर्स द प्रीवियस वन विल डिलीट, ठीक है. सो प्रीवियस वाली हम डिलीट कर देते हैं. सो आइटम्स एडेड एंड डिलीट फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन, ओके. इस तरीके से आप एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं हॉस्पिटल के अंदर. दूसरा, हमें जेनरिक चाहिए, ब्रांड नेम, क्रॉस रेफरेंस लिस्ट, ठीक है. देयर आर सम ऑफ द मेडिकेशंस जो कि हम जेनरिकली प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें जेनरिक चाहिए. देयर आर सम ऑफ द मेडिकेशन जो कि ब्रांडेड प्रिस्क्राइब की जाती है. सो वी वांट द ब्रांड नेम एज वेल एज द जेनरिक नेम. व्हाट इज द नेक्स्ट हियर वी वांट? फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है. दवाओं का थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है, उनकी रेंज क्या है, किस रेंज में वो सेफ़र हैं. सो ये भी हमें मेंशन करना होता है. जैसे मान लो पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल इज सेफर अप टू लाइक वी कैन टेक 4 ग्राम्स, या. सो वी हैव टू नोट दिस कि थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है और उसके साथ उनकी कॉस्ट कोड्स क्या है, ठीक है. सिमिलरली फार्माकोलॉजिकल, या आई टोल्ड यू जैसे थेरेपेटिक इंडेक्स में कि पैरासीटामोल आपकी 4 ग्राम तक सेफर है, बट फार्माकोलॉजिकली हमें क्या प्रिस्क्राइब करनी है. तो मान लो फार्माकोलॉजिकली आपकी जो पैरासीटामोल है वो 1 ग्राम्स में, ठीक है, या 1 ग्राम्स ओडी, 1 ग्राम्स बीडी. सो वी हैव टू मेंशन सो दैट द फिजिशियन कैन टेक डिसीजन. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दिस. ये हॉस्पिटल फॉर्मुलरी आपकी कैसे हेल्प करती है. दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस फॉर द फिजिशियन. सो फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इंडेक्स मेंशन होता है
कि कोई भी दवा किन किन स्ट्रेंथ पे यूज़ की जा सकती है, कितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. लाइक फॉर द एंटीबायोटिक स्पेशली वेयर द रेजिस्टेंस हैपन्स, वहाँ पे यू कैन सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको मेंटेन करें. इफ़ इट इज़ फॉर द 5 days, इफ़ इट इज़ फॉर द 7 days, और इफ़ इट इज़ फॉर द 14 days, so we have to maintain that duration also. Okay, so it is also mentioned in the hospital formulary. Description of the formulary drug products by pharmacological therapeutic classes. Now हमें descriptions देनी है formulary drug products की, ठीक है, कि उनके pharmacological classes क्या हैं. What do you mean by this? Like I told you, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल फीवर के लिए यूज़ होता है. मेटफॉर्मिन आप ले रहे हो, वो एंटी डायबिटिक ड्रग है. सो हम उसको क्लासीफाई ही इसी तरीके से करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग आप बना रहे हैं, कौन कौन सी ड्रग आप मेंशन कर रहे हैं. लाइक एंटी डायबिटिक कैटेगरी के लिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये 3 दवाएं इस्तेमाल की जाएंगी हॉस्पिटल में. एंटी कैंसर के लिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लाइक दिस. So category wise we have to segregate it. Yeah. Now appendix, this is one of the part. हमने पढ़ा कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में टाइटल पेज होता है, पीटीसी मेंबर के बारे में लिखा होता है, हॉस्पिटल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्या पॉलिसीज़ यूज़ करनी चाहिए, हॉस्पिटल फार्मेसी को क्या प्रोसीजर्स पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए. उसके बाद आपके क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, जो पॉइंट नंबर 5 में हमने पढ़ा, क्या प्रोडक्ट आएंगे जिसमें जेनरिक, ब्रांड नेम, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मेंशन होगा, थेरेपेटिक इंडेक्स मेंशन होगा, फॉर्मुलरी ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में मेंशन होगा आपका फॉर देयर फार्माकोलॉजिकल क्लास. सो ये सब मेंशन करने के बाद आपकी बुक जो है वो रेडी है, ठीक है. बट उसमें आपका अपेंडिक्स पार्ट अभी है. अपेंडिक्स पार्ट में देखो क्या आता है, सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिस्ट, ठीक है. सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल आपका इन इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है. व्हाट आर दीज इक्विपमेंट्स, वी हैव टू नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स. सी यू कैन कॉल इट एज ग्लव्स, या यू कैन कॉल एज IV infusions, IV bags, yeah, catheters which needs to be sterilized. ऑपरेशन थिएटर्स के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, दे ऑल कम अंडर द सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई लिस्ट. सो वो सब भी हमें मेंशन करना है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, उनकी लिस्ट देनी होती है. वो लिस्ट में आपका ग्लव्स आ जाता है, आपके IV इन्फ्यूजन्स आ जाते हैं विच नीड्स टू बी स्टेरिलाइज्ड प्रॉपर्ली, या कैथेटराइजेशंस आ जाती हैं, आपके इंजेक्शंस आ जाते हैं, इंजेक्शंस हैं, निडल्स हैं, या ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ होते हैं, ICU में देयर सम ऑफ द मेडिकेशंस विच आर यूज्ड. दिस एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन इन द अपेंडिक्स, या पॉइंट नंबर 1. दूसरा क्या है आपका, पेडियाट्रिक डोजेस के लिए, जो आप पेडियाट्रिक डोजेस बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए, मतलब पेडियाट्रिक डोजेस में छोटे बच्चों के लिए जो प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं, जैसा कि मैन्युफैक्चरर्स जो भी दवाएं होती हैं ऑलरेडी फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, व्हाट हैपन्स, आपको सारी फॉर्मुलेशंस पेडियाट्रिक के लिए नहीं मिलती हैं. कई फॉर्मुलेशंस बनती हैं बट नॉट ऑल. सो हमें क्या करना होता है, डाइल्यूशन की ज़रूरत होती है, ठीक है. वी नीड द डाइल्यूशन. सो फॉर द डाइल्यूशन फॉर द पेडियाट्रिक डोजेस हमें क्या मेंशन करना होगा, व्हाट फॉर्मूलाज वी आर यूजिंग. आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, इज़ देयर एनी एज फार्मूला, इज़ देयर एनी वेट फार्मूला, आप वेट के बेसिस पे कर रहे हैं या सरफेस एरिया के बेसिस पे कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज. सो वी हैव टू मेंशन, ओके, कि क्या क्या आपकी गाइडलाइंस हैं. कोई हॉस्पिटल बनाएगा, ऑफकोर्स उसको क्या अप्रोप्रिएट लगता है, विच फार्मूला इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द वेट और द सरफेस एरिया, ठीक है. सो ये हमें मेंशन करना होता है अपेंडिक्स पार्ट में. थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या स्केड्यूल्स हैं, ठीक है. जो दवाएं आपकी स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस में आती हैं, ठीक है, इनके लिए आपको स्केड्यूल्स मेंशन करने होंगे, ठीक है. क्या क्या आपके प्रोसीजर्स होंगे जिनके थ्रू आप दवाओं को देंगे, स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो सी द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड द ड्रग लिस्ट. नाउ ये कन्फ्यूजन होता है कि इज दिस both hospital formulary and the drug list both are similar or not. So yes, the answer is both are not similar. Why? See, formulary किस तरीके से different है और drug list किस तरीके से different है. देखते हैं.
फॉर्मुलरी क्या है आपकी, मीन्स हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। अच्छा, आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो आप बोल सकते हो वो थोड़ी इलैबोरेटिव है, उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, काफ़ी सिस्टमेटिकली बनाई जाती हैं, ठीक है। उसमें थेरेपेटिक ड्रग कमेटी का रोल है, जिसे आप पीटीसी बोल रहे हैं, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का रोल है। So see what is the difference written in the slides here. It consists of listing of therapeutic agents. इनमें आपके therapeutic agents mention है, कौन कौन से therapeutic agent का मतलब दवाएं, जो भी आप दवा mention कर रहे हो, by their generic name. उनका generic name क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल ब्रांड नेम से भी आती है, डोलो के नाम से आती है, तो generic you call it as a paracetamol, acetaminophen you can write. So generic name followed by the information on the strength. किस स्ट्रेंथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है, लाइक फॉर द 500 mg इट इज प्रिस्क्राइब, 1 ग्राम इट इज प्रिस्क्राइब, सो यू हैव टू मेंशन जेनरिक नेम फॉलोड बाय द इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ हो गया आपका। पोसोलॉजी, द डोज कैलकुलेशन, आई टोल्ड यू, जैसे पेडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए, सिमिलरली फॉर द एडल्ट के लिए भी वी हैव द डिफरेंट फॉर्मूला, या फॉर द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन ऑफ कोर्स, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप कैसे डोज कैलकुलेशन कर सकते हो। पोसोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, कोई भी दवा क्या साइड इफेक्ट्स दिखा रही है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स दिखा रही है, यूजेस क्या हैं, ठीक है। रिकमेंडेड क्वालिटी टू बी डिस्पेंस्ड, और क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं फॉर अ पर्टिकुलर एज, फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज पेशेंट्स, द पेशेंट्स हु आर contraindicated, like for the pregnancy we have seen, for the lactation we have seen, for the liver compromised patients, for the kidney compromised patients, there are different therapy chart, है ना, we have to personalize. So ड्रग लिस्ट, सी ड्रग लिस्ट क्या होता है, जैसे कि हमने फॉर्मुलरी में पढ़ा, जैसे ड्रग लिस्ट में पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्टिंग ऑफ थेरेपेटिक एजेंट, यहाँ पे सारी दवाएं मेंशन हैं, उनका जेनरिक नेम मेंशन है और स्ट्रेंथ, फॉर्म, बस इतना, ठीक है। सो ड्रग लिस्ट आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा एक फॉर्म है जिसमें ड्रग को नंबर वाइज लिस्टिंग की जाती है, मेंशन होती हैं दवाएं, साथ में उसकी स्ट्रेंथ मेंशन होगी, एंड बहुत ज़्यादा तो फॉर्म मेंशन होगी कि किन किन फॉर्म में दिया जा सकता है। वेयरएज फॉर्मुलरी बहुत इलैबोरेटिव फॉर्म है, जहाँ पे आपको पोसोलॉजी मिल जाएगी, कैसे डोज कैलकुलेशन करते हैं, क्या टॉक्सिकोलॉजी होती है, क्या यूज़ है, किस तरीके से पर्पस है, एंड यस another difference we can see here is it is a more informative publication. I told you ये systematic study है, ठीक है, आप systematic basis पर इसको बनाते हो, तो बिकॉज इसमें पीटीसी का रोल होता है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का रोल होता है, तो ये इंफॉर्मेटिव पब्लिकेशन की तरह काम करती है, ठीक है, एजुकेशनल रोल होता है इसका, एंड मे एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द एजुकेशनल एस्पेक्ट्स इन हॉस्पिटल्स विद इन द एक्टिव इंटर्नीज। आई टोल्ड यू, जैसे कि आपका एजुकेशनल रोल है तो हम इंटर्नीज को एजुकेट कर सकते हैं, हम फार्मासिस्ट को एजुकेट कर सकते हैं, हम नर्सिंग स्टाफ्स को एजुकेट कर सकते हैं, ग्रेजुएट नर्सिंग स्टाफ्स जो होते हैं आपके, या जो भी इंटर्नीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आए होते हैं उनको, of course the physician who are in the hospitals who are giving treatment to the patient. So there are different meetings in the PTC, you call it as pharmacy therapeutic committee की छोटी छोटी meetings होती हैं 6 months पे, 1 year पे, and or you can say more than this, उसमें हम क्या कर सकते हैं, we can give the more informative sessions, ठीक है, आप more informative sessions दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच है, यू कैन से, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लिटरेचर सर्च करके, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ रिपोर्ट पढ़ के, सो इस तरीके से आपकी फॉर्मुलरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ड्रग लिस्ट में क्या होता है, इट मे और मे नॉट बी एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई टोल्ड यू इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें बस क्या होता है, ड्रग की लिस्टिंग होती है और साथ में स्ट्रेंथ मेंशन होगी और फॉर्म मेंशन होगी। सो दैट्स वाई द वन ऑफ द डिफरेंस इट इज़ रिटन हियर, मे और मे नॉट बी एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो सम ड्रग लिस्ट मे प्रोवाइड द प्रिस्क्राइबर, लेकिन ऑफकोर्स वी कैन यूज़ इट, हाउ वी कैन यूज़ इट, सी प्रिस्क्राइबर्स इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या दवाएं हैं, उनकी क्या क्वांटिटीज़ मेंशन है, इस तरीके से कोई भी फिजिशियन ड्रग लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर द प्रिस्क्रिप्शन बेसिस, और ऑफ कोर्स फ्रॉम द फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्पेंसिंग पर्पस के लिए ड्रग लिस्ट को यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस हियर, या, सो थैंक यू सो मच।